Hello, Assalamu alaikum and welcome to Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम. Thank you so much for joining us on another cricket episode, a fresh episode. Of course, आज का show will be focused on what's happening in the world of cricket. अब हम सब cricket fans हैं और we all love watching this game, this beautiful game. तो पाकिस्तान की टीम ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम नहीं भी कोई मैच खेल रही, हम फिर भी क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे, हम फॉलो करेंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में. और आज का शो भी विल बी मोर फोकस्ड ऑन व्हाट्स हैपनिंग एट द ग्लोबल फ्रंट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एंड सो मच टू अनपैक टुडे. हम रेड बॉल के ऊपर भी आज फोकस कर रहे हैं. उसके अलावा हमारे जो डोमेस्टिक में इस वक्त चैम्पियनशिप एंड हुई है, कायदे आज़म ट्रॉफी, उसके बारे में भी बात करेंगे. कौन रहे इस टूर्नामेंट के परफॉर्मर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया और शायद अब उनको हम फ्यूचर में पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते हुए भी देखेंगे. सो अ लॉट टू डिस्कस इन टुनाइट्स एपिसोड. लेकिन उससे पहले अ क्विक लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. Australia has inflicted a crushing defeat on England in the second test at the Gabba. Securing an emphatic 8-wicket victory on day 4, the hosts now lead the 5-match series 2-0. Australian pacer Mitchell Starc was the standout performer, named Player of the Match. In Christchurch, the first test between New Zealand and the West Indies ended in a draw. The West Indies put up a resilient fight on the final day, batting out time to deny the Black Caps a victory. The focus now shifts to the second test, set to begin later this week on December 10th. India has wrapped up a successful one-day international series, defeating South Africa with a 2-1 margin. Star batter Virat Kohli was in spectacular form throughout the series, breaking records and silencing critics with his prolific run scoring. The Sydney Sixers have secured their place in the Women's Big Bash League final after a dramatic victory. Elise Perry's century proved pivotal as the Sixers defeated the Adelaide Strikers today. Former England batsman Robin Smith died at the age of 62. Known as the Judge for his courageous and entertaining batting style, particularly against fast bowling, Smith represented England in 62 Test matches and 71 one-day internationals between 1988 and 1996. In domestic cricket, Karachi Blues have been crowned the champions of the prestigious Quaid-e-Azam Trophy. They secured a decisive 218-run victory over defending champion Sialkot in the final at the Gaddafi Stadium in Lahore, with pacer Saqib Khan taking a total of 9 wickets in the match. Mitchell Starc surpasses Wasim Akram as leading left-arm pacer in the wickets tally. Starc now has 420 wickets in 102 Test matches. जी what a week it has been in Test cricket. यहाँ पर एक short break लेंगे, but when we come back, really interesting gripping analysis is coming right up along with two of our great experts who are here in the studio. Please keep watching Sports Tonight. Ji, welcome back. You're watching Sports Tonight, and today we will be unpacking what's going on in the world of Test cricket. It has been a great week for Test cricket. लेकिन अगर आप मेरी तरह बेन स्टोक्स के फैन हैं और आप ये टेस्ट मैच देख रहे थे इसी उम्मीद में कि शायद इस बार इंग्लैंड विल टर्न things around for themselves and claim a win in this ongoing Ashes, आप थोड़ा सा मायूस ज़रूर हुए होंगे. But on the other hand, of course, what a brilliant win from Australia yet again. This is a sentence that I think keeps being played back in a loop. और आज हमारे जो experts हैं उनके साथ हम discuss करेंगे कि what happened to England and how can they make a comeback in this series. I've been joined by a regular on Sports Tonight. Sports expert Hassan Azam has joined us. Assalamu alaikum Hassan, welcome back to the show. Walaikum Assalam, and like you Roha ji, I was hoping for a Stokes special as well. I think everybody was, but unfortunately didn't come about. बिल्कुल बिल्कुल, we'll talk about that in detail. उनके साथ हमें join किया है after a while. He is back in the Sports Tonight
studio, Pakistani international cricketer Adnan Akmal. Assalamu alaikum Adnan, great to have you back. वालेकुम अस्सलाम जी, और नाउ इज कम बैक टू विद द फैमिली, और बहुत अच्छा लग रहा है। और शो तो बहुत ही वहाँ पे जहाँ पे था वहाँ पे भी देखता रहा, आपको फॉलो करता रहा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्कशन करने के लिए हैं, तो लेट्स सी लेट्स स्टार्ट। आई थिंक पहले तो एशेज से स्टार्ट करते हैं कि ये सेकंड टेस्ट हमने काफ़ी इस पे बिल्डअप भी किया था कि इंग्लैंड के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, स्पेशली एट दिस वेन्यू एंड इन दीज कंडीशंस टू मेक अ कम बैक। स्पेशली जो पहला लॉस उनको हुआ वो भी ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इन दी एंड बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो भी जीता। वी टॉक्ड अबाउट दैट, बट लेट्स start with England in that first innings because a lot seems to have gone their way, especially Joe Root giving a Joe Root special. How amazing was it to see that? I think it's vintage Joe Root. खास तौर पे मतलब एक best English batter of his generation है. I think arguably the best English batter in red ball cricket anyway. उस मतलब 40 सेंचुरियाँ, और ऑस्ट्रेलिया में आई एम श्योर कि अगर वो ना भी सेंचुरी बनाते तो उनकी लेगेसी में कोई कमी नहीं थी आनी, लेकिन एक मार्क ज़रूर रह जाना था कि हर जगह जाके परफॉर्म किया, हर टाइप ऑफ पिच पे जाके उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली, डाउन द ग्राउंड भी उन्होंने वो शॉट्स लगाए, विंटेज कट भी किए, पुल भी किए, द जो रूट ड्राइव्स वर देयर, एंड देन दैट इनोवेशन, दैट 2.0 जो रूट जो जब से हम देखना शुरू हो गए कि जब उन्हें एक्सेलरेट करना होता है या नई शॉट्स को जिस तरह उन्होंने इनोवेट किया, इन्वेंट किया, आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट। बट इंग्लैंड की कह लेंगे उनके लिए मुश्किल ये रहा कि जो रूट का कोई साथ ही नहीं दे पाया, ख़ास तौर पे जब 90 for 1 था, एंड एट दैट पॉइंट व्हेन योर ओपनर गेट्स आउट एंड देन यू नो ब्रुक गेट्स आउट राइट अवे, मे बी देयर वाज अ चांस, वहाँ पे उन्हें साथ देना चाहिए था। तो इंग्लैंड विनिंग द टॉस एट ब्रिस्बेन, देन स्कोरिंग दैट रन्स, आई थिंक दे वर स्टिल 100-150 शॉट टू बिगिन विद। एंड ऑफ कोर्स इतना बड़ा ओकेजन था कि जो रूट की पहली सेंचुरी थी ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑब्वियसली देयर वर सो मेनी रीजंस फॉर इंग्लैंड टू सेलिब्रेट, लेकिन साथ देने के लिए कोई और नहीं था। बॉलिंग में भी अगर हम बात करें, स्टार्क एक दफ़ा फिर से ऐसे मैच के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। 6 विकेट्स ही टुक इन दैट फर्स्ट इनिंग्स एज वेल, एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मिचेल स्टार्क के ऊपर कि इतने टाइम के बाद, इतने टाइम से वो बॉलिंग अटैक को सॉर्ट ऑफ लीड ही कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। एंड अगेन उनके दो जो स्टार बॉलर्स हैं, ना कमिंस हैं ना हेजलवुड हैं, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने इतना डोमिनेट किया विद द बॉल। देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एज ए कहते हैं ना कि सीनियर बॉलर जो होता है वो हमेशा परफॉर्म करता है, तो फिर आपकी टीम को हेल्प मिलती है। और तो स्टार्क जिस तरह की बॉलिंग की है उसने फर्स्ट टेस्ट मैच में देखो, सेकंड टेस्ट मैच में देखो, तो न्यू बॉल के साथ जब आपका सीनियर बॉलर न्यू बॉल के साथ जब आप विकेट्स लेते हैं तो प्रेशर जो है वो बैटिंग साइड के ऊपर आता है। वही ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर बनाया जिसकी वजह से वो डोमिनेट करते रहे। मिचेल आउट करता था, बीच में आके स्पिनर आउट कर देते थे, दूसरे आके बॉलर आउट कर देते थे। जब आपका सीनियर बॉलर आउट करता है तो फिर आपको इसी तरह की विक्ट्री देखने को नज़र आई है। और इसी तरह जो एग्रेशन जो होता है ना बॉलर्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप आउट करते हैं तो फिर आपकी एक रेपो बनती है कि इसको सर्वाइव कैसे करना है, और वही देखने को नज़र आया मिचेल की तरफ से। बट हसन, इसी की कंटिन्यूएशन में हम बात करेंगे कि ऑफ कोर्स मोमेंटम जो था वो स्विंग हो रहा था इधर उधर, बट इंग्लैंड स्पेशली इन दैट सेकेंड इनिंग्स जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा चाहिए था कि थोड़ी सी ब्रेक्स हिट हों, थोड़ा सा कोई कंसोलिडेट करे आके, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगे आके। व्हाट हैपेंड टू इंग्लैंड देयर, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे बार बार ये वर्ड भी लोग अब बात करते हैं, बैस बॉल, बट व्हाट रियली वेंट ऑन? क्या कोई स्ट्रैटेजी थी कि आपने इन कंडीशंस में किस तरह की लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट कैसे खेलनी है? बिल्कुल लैक ऑफ स्ट्रैटेजी नजर आई। बल्कि मैं नासिर हुसैन एक बात कर रहे थे और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि इंग्लैंड वर आउट थॉट, आउट बोल्ड, आउट फील्डेड एंड आउट प्लेड ओवरऑल, विच वाज वेरी ट्रू। क्योंकि जो गलतियां इंग्लैंड ने शुरू से की पहली इनिंग से, और होता क्या है कि टेस्ट मैच में वो गलतियां कंपाउंड होती चली जाती हैं। तो अगर आपने फर्स्ट इनिंग्स में मिस्टेक्स की हैं, चौथी इनिंग्स तक आपको वो सामने नजर आने लग जाती हैं। पहले आपने टारगेट सही सेट नहीं किया, फिर जब आपकी पहली इनिंग्स में बॉलिंग आई, यू वर नेवर कंसिस्टेंट इनफ। अभी स्टार्क्स के विकेट का हमने जो पैकेज दिखाया है, आपने नोट किया कि सारे अवे स्विंगर्स थे। स्टार्क ने इस मैच में इन स्विंगिंग बॉल पे आउट किया ही नहीं, बिकॉज ही रियलाइज्ड कि मेरा वो गेंद यहाँ पर नहीं हो रहा, तो मैं फुल अवे बॉलिंग करूंगा। इंग्लैंड कुड हैव इजीली लेट दैट गो। एक पैसेज ऑफ प्ले सिर्फ नजर आया जब स्टोक्स और विल जैक्स खेल रहे थे, व्हेन दे स्टार्टेड लीविंग द बॉल एंड अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड यू लाइक
okay, maybe they finally learned their lesson, and still feels like maybe they'll go do that in the third test. They have to. Other than that, it was a lack of strategy. आपको पता है हमने पिछले टेस्ट के बिल्डअप में भी बात की थी कि ऑन दी अप मत ड्राइव मारो, वो मारते जा रहे हैं, एजें लगती जा रही हैं, और बॉलिंग वाइज दे वर नॉट कंसिस्टेंट इनफ. What Australia did was they kept it simple. उन्होंने चैनल बॉलिंग की है और डिसिप्लिन से की है. इंग्लैंड थोड़ी देर बॉलिंग करता था चैनल पे एंड दे वेरी क्विकली वेंट टू दैट शॉर्ट बॉलिंग प्लॉय, फील्ड खुल जाती थी. और बेसिक्स की अगर हम बात करें रोहा जी, स्टार्क ने भी, आई एम सॉरी आई एम गोइंग ऑन अ बिट ऑफ अ रैंट, बट देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच लाइक लीव यू फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस इंग्लैंड टीम. स्टार्क जब बैटिंग कर रहा था उसने वो पार्टनरशिप फॉर्म की, उसकी अक्लमंदी देखिए कि वो सिर्फ लंबा कर रहा था मैच को कि जैसे ही रात होगी हम रात में आउट होंगे, नया बॉल पिंक बॉल रात में हमें मिलेगा तो हमने ऊपर से इनके आउट कर क्योंकि पिंक बॉल जो है ना रात के टाइम ज़्यादा स्विंग आता है. इंग्लैंड की बैटिंग का थोड़ा सा मैं करूँगा तो इंग्लैंड ने स्टडी किया हुआ था कि स्टार्क का बॉल, न्यू बॉल जो है वो राइट हैंडर को अंदर ही आता है, इन स्विंग होता है, तो वहाँ पे वो बिल्कुल अपनी लेग जो है वो स्ट्रेट लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वो बॉल आउट स्विंग करता रहा, जिसकी वजह से इंग्लैंड की पूरी टीम को जो है वो बैटिंग में बॉलिंग खेलते हुए या बैटिंग करते हुए थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस आ गई थी. तो उस वजह से नहीं छोड़ना भी नहीं है, और छोड़ना भी नहीं, और ड्राइव भी खेलते ना. देखे जो मिचेल है या शाहीन की हम बात करते हैं, ये इनका न्यू बॉल जो है ना इन स्विंग होता है, तो आपके जो कोचेज है उन्होंने प्लान दिया होता है कि इनका न्यू बॉल अंदर ही आएगा, तो इसी वजह से वो ड्राइवे भी मारते रहे, जिसकी वजह से इंग्लैंड की सारी टीम को प्रॉब्लम. यहाँ पे बिल्कुल अगर वो अंदर की तरफ खेलते तो ये वाले काम नहीं होना चाहिए जो इंग्लैंड ने किया. और हम प्रेशर को भी ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक तो आपकी बैटिंग में स्ट्रैटेजी नहीं नजर आई, हम इंग्लैंड के एनालिसिस कर रहे हैं. बॉलिंग में इस तरह हसन ने अभी कहा कि स्ट्रैटेजी नहीं नजर आई. फील्डिंग वाज अनदर एरिया जो दोनों टीम्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, और यही चीज़ें होती हैं जब मैच में इन दी एंड जब आप बैठ के रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन व्हाट हैपेंड इन द ग्राउंड, तो वो छोटे बिट्स में जो आपने मिस फील्ड की होती है या चांसेस ड्रॉप किए होते हैं, वो बाद में देन दे कम बैक एंड हॉन्ट यू, एंड दैट्स प्रोबेबली व्हाट्स हैपनिंग विद इंग्लैंड राइट नाउ. 5 मिस्ड चांसेस इन दैट फर्स्ट इनिंग्स जो ऑस्ट्रेलिया की थी. I mean, they will not be happy with that in a match like that, in a pressure game like that. Yeah, and given how they closed off that first game in 2 days, they would have wanted to do absolutely a lot better. बल्कि बाद में सवालात भी उठे उनसे और कलम से भी उठे कि आपको क्या रात की तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि पिंक बॉल रात को कैच करना इट्स नॉट दैट इजी, स्पेशली जब अवे टीम्स यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया को खेलती हैं तो ये बॉल स्पॉट करना मुश्किल होता है अंडर लाइट्स. हैविंग सेड दैट आपके पास टाइम था और कुछ कैचेस बिल्कुल सीधे थे. कवर पे भी जो ये कैच छोड़ा है ये बिल्कुल सीधा था. स्मिथ से भी जो कैच छोड़ा, आई मीन अगर आपने इट्स ऑलरेडी अ वेरी टफ वेन्यू, इट्स अ बिग सीरीज, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है यू हैव टू ग्रैब ऑन दीज चांसेस. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की देख लें फील्डिंग, स्पेशली एलेक्स कैरी जिनकी इस वक्त इतनी तारीफ हो रही है. नान आप खुद भी आपने इतनी कीपिंग की है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है एक कीपर के लिए. अभी इस वक्त उनके बारे में ये कहा जा रहा है दैट ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एलेक्स कैरी, द वे दैट ही हैज़ आउट प्लेड द ऑपोजिशन इन टर्म्स ऑफ बीइंग अलर्ट बिहाइंड द विकेट्स. कितना इंपॉर्टेंट होता है एक विकेट कीपर का ऐसे प्रेशर मैच में अपनी ए गेम पे रहना. देखें एज ए विकेट कीपर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है मैच पे, तो जो अच्छे विकेट कीपर वो हमेशा ज़्यादा फोकस करते हैं. वही देखने को नज़र आया एलेक्स कैरी की तरफ से. देखें कैचेस विन मैचेस, वो विकेट कीपर हो या स्लिप का हो. देखें यहाँ पे इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड जो निकल के उसने हिट मारी है दोनों के दरमियान से वो कैच निकल गया. अगर विकेट कीपर ज़रा सा मूव करता तो एलेक्स कैरी की तरह कैचेस पकड़ता. यहाँ पे तो जो ये पिंक बॉल है, हसन आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि ये थोड़ा बॉल शाइन बहुत ज़्यादा करता है लाइट में, इस वजह से ऐसा लगता है कि शायद उनको इंग्लैंड को यही फेस करने को मिला. और एलेक्स कैरी की बात करें वो बड़ी अच्छी टेक्निक है, वो बॉल की लाइन में जाता है, उसका हेड बिल्कुल बॉल को फॉलो करता है, तो उसकी टेक्निक जो है वो प्रॉपर विकेट कीपर वाली, तो इसी वजह से बहुत ही अच्छी कीपिंग करते हैं. और ऐसे प्रेशर मैचेस में अगर विकेट कीपर आपका कैच कर लेता है तो फिर बैटिंग साइड के ऊपर प्रेशर आता है. वही प्रेशर बनाया जब बॉलर आउट कर रहा है, आपके कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये प्रेशर जो है वो जो बॉलिंग के ऊपर आता है. और ऑस्ट्रेलिया के जितने कैचेस निकले हैं वो स्लिप वाला फील्डर हो या कोई भी हो और विकेट कीपर हो, तो उन्होंने ग्रैब किए, इसी वजह से इंग्लैंड के ऊपर सारा प्रेशर बना रहा. बिल्कुल, स्पेशली बेन स्टोक्स के डिसमिसल में जिस तरह एलेक्स कैरी का वो जो रोल था, जो उसकी सेलिब्रेशन थी उस कैच की, ऑफ कोर्स इट मेंट सो मच टू ऑस्ट्रेलिया ऑन दैट डे, बिकॉज ऑब्वियसली बेन स्टोक्स इज अ काइंड ऑफ प्लेयर के जो भी सिचुएशन हो स्कोर कार्ड पे, अगर बेन स्टोक्स इफ ही इज़ आउट, इफ ही इज़ बैटिंग
anything can happen. Yeah. And I think Australia were relieved big time. इसलिए Alex Carey की तारीफ भी बहुत हो रही है. With the bat भी उन्होंने contribute किया. Would you agree with what's being said about him? Is he the best wicketkeeper in the world right now? Yeah, red ball cricket में right now he's proving himself to be the best because जिस तरह के वो innings खेलते हैं crucial time पे अपनी team के लिए, I know he's got the likes of Gilchrist and Ian Haley to contend with. लेकिन आपने एक जनरली चीज़ देखी होगी रोहा जी, खासतौर पर जिस तरह आपने सेलिब्रेशन की बात की कि ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर है ना उसके कल्चर में इन्फ्यूज्ड है ये, चाहे वो एलेक्स कैरी हो या कोई भी हो, उनकी कंपेटिटिव नेचर इतनी है, इतने कंपेटिटिव ये लोग होते हैं, देयर सो हाइप्ड अप एंड पम्प्ड अप फॉर दोज गेम्स कि दैट्स हाउ दे एंड अप परफॉर्मिंग. एंड आई थिंक इस वक्त एलेक्स कैरी के साथ अगर मैं किसी का मुकाबला करूंगा टेस्ट क्रिकेट में तो मोहम्मद रिजवान का होएगा बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंसी एंड हाउ गुड ही इज बिहाइंड द स्टंप्स एंड how many runs he scores for Pakistan. But generally, Alex Carey in those conditions, without a doubt, the best right now. And of course, अब क्योंकि हमने 5 मैच टेस्ट सीरीज जो है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया लीड कर रहे हैं 2-0. Where do we see this series going now? अगले अगर हम आपसे मैच की प्रेडिक्शन लें या ओवरऑल अभी सीरीज की आपको शेप अप होती हुई कैसी नजर आ रही है? कैन इंग्लैंड मेक अ कमबैक इन द नेक्स्ट? देखिए मैच तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 5 मैचों में अगर 3 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा तो फिर 1-2 मैच ऑलरेडी जीता हुआ तो तीसरा मैच अगर जीतेगा तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा. अगर इंग्लैंड मैच जीत जाता है तो फिर ये पूरी लाइव रहेगी सीरीज और देखने को नजर आएगा. प्रेशर ज़रूर होगा इंग्लैंड टीम के ऊपर पर वो स्ट्रांगली कम बैक कर सकते हैं क्योंकि कैचेस उन्होंने छोड़े. अगर वो कैचेस पकड़ लेते तो शायद सेकंड टेस्ट का जो है ना वो डिफरेंट होता कि जो है वो जीत सकते थे. आई थिंक फैंस के लिए ज्यादा एंजॉयबल भी यही होगा इफ इंग्लैंड विन द थर्ड टेस्ट सो दैट देयर इज स्टिल सम इंटरेस्ट इन दिस एशेस. आप एक आधी ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ आपका ये हाल है. अभी ना पैट कमिंस है, ना नेथन लायन है, ठीक है, ना हेजलवुड है, ख्वाजा नहीं था इस मैच में, तो आप वापस आए तो मुश्किल. और देखिए पिछली 4 जितनी भी सीरीज हुई हैं एशेज ऑस्ट्रेलिया में वो 4-0 ऑस्ट्रेलिया ने हर सीरीज में किया है. मुझे Adelaide is probably the pitch which suits England the most क्योंकि वहाँ पे रन स्कोरिंग उस तरह उनको मिलेगी. I think if England don't make a comeback at Adelaide, you can probably stamp this series like 4-0, even 5-0 अगर ये हाल हुआ क्योंकि it's now or never for England. बिल्कुल. और हमने एक और एलिमेंट के हमसे मिस हो गया, माइकल नेसर की इंक्लूजन स्पेशली अहेड ऑफ नेथन लायन. बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी, बहुत से लोग खुश भी नहीं थे. दे वर लाइक क्यों, यू नो, इतनी पेस भी नहीं है. ऑब्वियसली स्पिन ऑप्शन एक हमेशा हैंडी आती है, बैकअप में होनी चाहिए. बट अगेन ही आई डोंट थिंक एनीवन वाज एक्सपेक्टिंग द काइंड ऑफ स्पेल दैट ही डिड, स्पेशली 5 विकेट्स इन दैट सेकंड 4th इनिंग्स. यही चीज़ सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी कि नॉर्मली इंग्लैंड के अब जो बॉलर्स आपका क्वार्टेड देखेंगे ना या आप उनकी पेस सबकी 140 तक है, तो नेसर जैसा बॉलर जो वो काउंटी में 80 माइल्स पर आवर खेल रहे होते हैं विद द विकेट कीपर आप, तो उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. लेकिन दैट टेल्स यू कि एक तो ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट कल्चर है कि वो उस बंदे को 35-36 में लेके आ रहे हैं और एशेस खिला रहे हैं एंड ही इज रेडी टू परफॉर्म एट दैट लेवल एंड हाउ सिंपल ही इज कीपिंग इट. ही इज जस्ट कीपिंग थिंग्स सिंपल, इज नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड बैटर्स वो करना चाह रहे थे उनके खिलाफ and you can see the results and that's what Australian cricket's all about. एंड अब हम टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एशेस चल रही है, दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बल्कि करीब ही उनके नेबरहुड में ही एक और बड़ा ज़बरदस्त हमने टेस्ट मैच देखा जो कि ड्रॉ हुआ. और अगेन न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ अभी चल रही है एंड जो कि व्हाट लुक्ड लाइक एन ईजी न्यूजीलैंड विन 531 जब आप चेज़ कर रहे हैं तो वेस्ट इंडीज़ को बहुत सारे लोगों ने राइट ऑफ कर दिया होगा कि क्या अब ये आखिरी 4th डे पे ये आके क्या करेंगे. बट देन जस्टिन ग्रीव्स, द वे दैट ही सॉर्ट ऑफ स्टूड देयर एंड बिकेम अ वॉल, इम्पेनेट्रेबल वॉल. 202 एक हीरोइक इनिंग्स उन्होंने खेली, मैच को बचाया, ड्रॉ की तरफ लेके गए और वो भी न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस में एक ऑलराउंडर होते हुए उन्होंने ये किया. Spectacular to see that. Of course देखें आपके हमेशा न्यूजीलैंड में अच्छा बॉल कैरी होता है, फास्ट बॉलर को ज़रूर हेल्प करती है. पर अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के ऐसा आके बैटर जहाँ पे मैच वेस्ट इंडीज़ हार रहा था वहाँ पे मैच ड्रॉ खेलना कहीं ना कहीं ये भी एक विक्ट्री होती है कि आपने इस तरह का मैच को भी ड्रॉ करना. और जिस तरह की उसने बैटिंग की और जिस तरह की उसने डोमिनेट किया बॉलर्स को और जिस तरह की बैटिंग की, तो ऐसे ही इनिंग्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीम के लिए
और ऐसे मैच ड्रॉ कर जाना और इस तरह की इनिंग्स खेलना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बैटिंग साइड के लिए। बिल्कुल। और ग्रीव्स ने तो आई थिंक लास्ट टाइम जेसन गिलेस्पी ने 200 की थी और 2 विकेट्स ली थी। उससे पहले यू कैन टॉक अबाउट पीपल लाइक गैरी सोबर्स एंड मुश्ताक मोहम्मद, लाइक दैट्स हाउ बिग दिस वाज। आई एम रियली हैप्पी फॉर वेस्ट इंडियन क्रिकेट एज वेल, क्योंकि इतने ग्रेट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। फॉर देम टू हैव एन ऑलराउंडर नाउ जिसने डबल सेंचुरी की है, 2 विकेट्स भी लिए हैं, सीम्स लाइक ही इज द रियल डील व्हिच विल बी गुड साइंस फॉर वेस्ट इंडियन क्रिकेट। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये रेड बॉल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ को इस तरह का रिजल्ट की तरफ लेके जाना बहुत ज़बरदस्त अचीवमेट है, ना सिर्फ उनकी अपनी क्रिकेट के लिए बट आई थिंक ग्लोबली रेड बॉल की जब हम बात करते हैं बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि मे बी टेस्ट क्रिकेट जो है वो 2-3 बड़े नेशंस में ही हम ज़्यादा उस पर अटेंशन देखते हैं, ज़्यादा व्यूअरशिप आती है, ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज़ आर कंटिन्यूइंग टू प्रूव कि this is the ultimate format and it belongs equally to everyone and I think it's a great thing to witness कि वेस्ट इंडीज़ ने जी अपना सेकंड हाईएस्ट, ये बल्कि ग्लोबली सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन द 4th इनिंग्स अचीव किया जब वो 4th डे पे 457 for 6 was what they ended up, जहाँ पे 72 for 4 थे वो 4th डे पे। जस्टिन ग्रीव्स आए, फिर बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप पहले उनकी शे होप के साथ लगी 196 रन्स की, एंड देन ऑफ कोर्स रोच के साथ 180 नॉट आउट का स्टैंड दैट टुक देम टिल दी एंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो नीचे आने वाले बैटर्स हैं वो भी लंबी गेम खेलने के इतने आदी हों, और वेस्ट इंडीज़ को ज़्यादातर एसोसिएट किया जाता था जी वाइट बॉल क्रिकेट से बिकॉज ऑब्वियसली उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त लीग्स भी चलती रही हैं, लेकिन ये मज़ा आया देखने का। देखिए अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें आफ्टर वर्ल्ड कप ऐसे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ के पास ऐसे प्ले नहीं है जो टेस्ट मैचेस में लंबी इनिंग्स खेलें, और ऐसा हुआ। वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर थे वो टेस्ट मैचेस में गए तो बहुत जल्दी मैच भी हार जाते थे और कोई लंबी इनिंग्स खेलने वाला नहीं था। सडनली उनके सीनियर्स जो भी थे सिस्टम में, उन्होंने प्लान किया और एक अच्छा प्लान किया तो इस तरह की जो है वो रिजल्ट देखने को नज़र आए। और ऐसा जो ऑलराउंडर हो जो 200 रन्स करे तो इसका मतलब है कि जो टॉप के बैट्समैन हैं, जो बैटर्स हैं, वो अच्छा कर सकते हैं अगर थोड़ा सी कॉन्सनट्रेट करें। टेस्ट क्रिकेट अबाउट फॉर कॉन्सनट्रेट, अगर आप अच्छी कॉन्सनट्रेट करते हैं, आप सेशन बाय सेशन खेलते हैं तो फिर आपको बहुत सी हेल्प मिलती है। अब इंग्लैंड की बात करें या वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो बैटर जहाँ पे जल्दी करेगा टेस्ट मैचेस में तो इसी तरह के रिजल्ट नज़र आएंगे, कुछ अच्छी इनिंग्स खेलेंगे और कुछ जल्दी आउट होकर ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे। बिल्कुल, आई थिंक कि ये प्लेयर्स की फिटनेस, बोथ मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस, इसमें बहुत ज़रूरी है। जस्टिन ग्रीव्स ने भी बाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिटेल में इस पर भी बात की कि कैसे उन्होंने अपने आप को तैयार किया टू प्ले दिस लॉन्ग फॉर्मेट एंड टू बी सस्टेनेबल। एंड एक ऑलराउंडर से हम ऐसी इनिंग्स की शायद एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, उनका काम वो मोरलेस यही होता है कि आप थोड़ा सा ड्रैग कर लें जितना भी पॉसिबल है मैच, बट जैसी इनिंग्स उन्होंने खेली ही ऑलमोस्ट बैटेड फॉर 9 आवर्स एंड आज के डे एंड एज में हम 4th डे पे ये ऐसी इनिंग्स, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स ऑलमोस्ट सरियल बट ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ टू टेक दैट मैच टू अ ड्रॉ। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, व्हेन वी कम बैक लॉट्स मोर कमिंग ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड। जी, welcome back. You're watching Sports Tonight. Break से पहले, of course, we were discussing two very interesting test matches that wrapped up this week. एक ऑस्ट्रेलिया में हम एशेज़ की बात कर रहे थे और एक हम न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे. What a draw that was. We did talk about that before the break. लेकिन अब थोड़ा सा फोकस अपना वापस लेके आते हैं ऑन पाकिस्तान क्रिकेट. डोमेस्टिक में बहुत रन्स हो रहे हैं. हमने जितनी भी इस बार टूर्नामेंट को अभी देखा, कायदे आज़म ट्रॉफी को बैलेंस्ड भी नज़र आया, बट एट द सेम टाइम कराची ब्लूज़ की जो विक्ट्री थी बाय 218 रन्स, कमेंडेबल. सियालकोट के अगेंस्ट फाइनल बड़ा ज़बरदस्त रहा. हसन, बहुत सारा हमें यंग टैलेंट नज़र आया इस कराची टीम में दैट टुक देम टू द फाइनल. बट आई वांट टू स्टार्ट विद साउथ शकील एंड हिज कैप्टनसी, द वे दैट ही लेड हिज टीम टू दिस विक्ट्री. बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आई कराची की, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी. एज अ कैप्टन, how impressed were you with Saud Shakil as the captain? I think Saud has been growing since he's taken up this captaincy role for Quetta as well. क्योंकि अब उनके ऊपर टेस्ट मैच क्रिकेट में भी he's considered one of the senior members of the team. And even with Karachi Blues, the way especially he used his youngsters,
या फाइनल में जिस तरह उन्होंने रियलाइज़ किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिच पे ये मैच हुआ था, तो जनरली दे प्लेड दिस स्पिनर्स एज वेल थ्रू आउट द अदर गेम्स एज वेल, बट यहाँ पे उन्होंने फास्ट बॉलर्स का इंतखाब किया। और इस पिच पर जब 4 आउट हुए, फिर जब वो पार्टनरशिप लगी अब्दुल्ला फजल की और उस्मान खान की, आई थिंक दैट फर्स्ट इनिंग स्कोर वाज क्रूशियल एंड यू कुड सी समबडी लाइक साउथ शकील वांटिंग देम टू स्टे इन, और मैसेजेस आ रहे थे बिकॉज ही कुडंट स्कोर दैट हिमसेल्फ, तो उनका वो नहीं लगी इनिंग्स, तो उन्हें पता था कि इस वक्त फर्स्ट इनिंग्स में अच्छा स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब उन्होंने सेकंड इनिंग्स में उन्हें टाइमली आउट किया और विकेट आपकी फ्लैटन आउट हो गई, then those batters made full use of it and scored a total which was, you know, unreachable for Sialkot in the end. So I think overall a very well led campaign from him and well done to Karachi Blues. और बैटिंग के हवाले से अगर हम बात करें, कराची ब्लूज़ के जो बैटर हैं साद बेग हाईएस्ट रन स्कोरर रहे वो इस टूर्नामेंट के, 1000 रन्स अंडर हिज बेल्ट, 55 की तकरीबन उनकी एवरेज रही इस पूरे टूर्नामेंट में। अगेन बड़ा इंप्रेस उन्होंने किया, थ्रू द रैंक्स वो आए, अभी तक भी हम उनको सर्किट में देख रहे हैं, एज ग्रुप क्रिकेट से अंडर 19 से बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने वाइट बॉल में भी उनको हमने PJL खेलते हुए भी देखा, और भी टूर्नामेंट्स में वो नज़र आते रहे, बट एज अ बैटर एंड एज अ कीपर बैटर उनका जो अब एक रोल बन गया है, बहुत ब्राइट फ्यूचर उनका नज़र आता है। देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो ऐसे प्लेयरों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। विकेट कीपर होना और 1000 रन्स करना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने विकेट कीपिंग, आपने स्कोर 0 रन्स करो या 100 करो तो आपने 90 ओवर कीपिंग करनी होती है, और इस फिटनेस के साथ 1000 रन्स करना और पूरे मैच में क्योंकि अगर आप 1000 रन्स करें तो फिर 4 दिन आप ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं, वो कीपिंग हो या बैटिंग हो, तो ऐसी परफॉर्मेंस देखने को। देखा आफ्टर मोहम्मद रिजवान हमें कोई ऐसा विकेट कीपर नज़र नहीं आ रहा, हारिस को भी चांस मिला और से बहुत से विकेट कीपर हैं, पर ऐसा नहीं परफॉर्म किया। और आफ्टर कामरान अकमल के बाद 1000 रन्स करते हुए जो है रिजवान थे या ये साद बेग नज़र आए, और बहुत ही अच्छी कीपिंग करते हुए, नेचुरल टैलेंट है, और जब नेचुरल टैलेंट के साथ आप परफॉर्म करते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनते हैं, और वही देखने को नज़र आया। वेल डन। और स्पेशली अगर दोनों टीमों की बात करें, सियालकोट की बात करें, जो कैप्टन था उसामा मीर, और साउथ तो हमारे लेजेंड हैं ही हैं, पाकिस्तान के टेस्ट टीम के जो सीनियर प्लेयर हैं, जब दोनों टीमें टॉप फाइनल खेलती हैं फिर मैच प्रेशर का होता है, और बहुत ही अच्छा प्रेशर हैंडल किया उन्होंने, परफॉर्म भी किया कराची ने बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। सियालकोट जो है प्रेशर में आया, खैर बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को नज़र आई पाकिस्तान में। और बिल्कुल हम साद बेग की भी बात करें, उनसे बिल्कुल कुछ ही रन्स पीछे शामिल हुसैन भी थे, जो कि काफ़ी टाइम तक तो लीडिंग रन स्कोरर रहे इस्लामाबाद की तरफ से। फिर उनकी टीम आगे क्वालिफाई खैर नहीं कर सकी, बट हमने उनकी तरफ से ऑलमोस्ट 900 रन्स अंडर हिज बेल्ट। अनदर एक्साइटिंग टैलेंट हम PSL में भी उनको देख रहे हैं, अभी हमने उनको प्रॉपरली अनलीश होते हुए नहीं देखा फ्रॉम PSL फ्रेंचाइज, बट ही इज़ बिन देयर फॉर अ फ्यू सीजन्स, ही इज़ बिन ऑन द बेंच ऑब्जर्विंग। डू यू थिंक इट्स अबाउट टाइम कि players like Shamil Hussain and Saad Beg are given that responsibility and thrown into that kind of pressure? Absolutely, I think ये खास तौर पे साद बेग भी कराची के साथ उन्होंने किया था, और एक बड़ी क्रूशल इनिंग्स भी खेले थे। शामिल भी, अजान अवैस इज़ वन ऑफ द नेम्स, आई थिंक उसी कैटेगरी में ये आते हैं, जहाँ पे हम कुछ साल पहले मोहम्मद हुरैरा को देख रहे थे। बट ये सारे यंगस्टर्स वो हैं, एक तो ये इकट्ठे क्रिकेट खेले हैं, अरफात मिनहास भी इसी में, और इन सब की खासियत ये है कि दे लव टू ग्रो वेरी क्विकली। ये इन सब में एक मेंटालिटी इन्फ्यूज़ हुई हुई है कि हमने जल्दी ग्रो करना है और जल्दी सीखना है, और उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अरफात उधर एशिया कप में करते रहे, और ये इधर जो है तीनों लड़के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप परफॉर्म करते रहे। और माज भी, और अली ज़रियाब भी एक लड़का है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, ओपनर न्यू बॉल के साथ करता है, उसने भी बड़े रन्स किए हैं, वो भी रन्स करता हुआ नजर आया, और बहुत से टैलेंट देखने को नजर आया। दिस बोर्ड्स रियली वेल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट्स फ्यूचर। जिस तरह बड़ी कमाल आपने बात की है कि आपको विकेट कीपर बैट्समैन के रोल में एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर नजर आता है साद बेग में, टू टेक अप दैट मेंटल ऑफ स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट, आई थिंक विच इज रियली गुड, एंड ही इज समबडी who's got his white ball game improving as well। उन्होंने हमें रैम्प मारते भी उन्हें देखा पिछले PSL में। आई थिंक ये लोग PSL में तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पैग्स बनेंगे टीमों का, बट आई फील लाइक मोर देन एनी आउट ऑफ दिस लॉट, साद बेग इज somebody who is adaptable to all types of देखें विकेट कीपर मैंने formats। मोस्टली यहाँ पे ना देखे कि वाइट बॉल को ज़्यादा कीपिंग करने का शौक है,
रेड बॉल में बहुत विकेट कीपर देखे हैं मैंने कम, जो लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग क्रिकेट खेलते हुए नज़र, और साथ में ये टैलेंट नज़र आया, क्योंकि पूरा 1000 रन करना और साथ कीपिंग करना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिनका क्रिटिसिज्म ये होता है कि यंगस्टर्स हैं, उनको लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहिए, वाइट बॉल में टाइम इतना, स्पेशली T20 क्रिकेट या लीग्स में इतना फोकस नहीं करना चाहिए, उनसे आपकी टेक्निक ख़राब होती है, गेम ख़राब होती है। इस डे एंड एज में जहाँ पे आप फ्यूचर यही है कि आप मल्टीपल फॉर्मेट्स भी खेल रहे हैं और आप बाकी फॉर्मेट से भी बहुत सीखते हैं, यानी कि आप टेस्ट खेल रहे हैं तो आप वनडे में बहुत सीखते हैं, आप T20 खेलें तो आपकी और बहुत एस्पेक्ट्स में गेम इंप्रूव होती है। डू यू थिंक इट्स रियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट कि एक यंगस्टर जो है वो खाली रेड बॉल पे फोकस करे एंड नॉट फोकस ऑन वाइट बॉल? आई थिंक अदनान एग्री करेंगे, जितने भी आप सीनियर प्लेयर्स से बात करते हो ना, तो वो आपको ये नैरेटिव देते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट खेलने से आपकी मेंटल कंडीशनिंग भी बेहतर होती है, क्योंकि जब इस लेवल पे आप आ जाते हो, हर बंदा जो इस लेवल पे आता है ना, उसका स्किल लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ना शुरू हो जाता है आपकी मेंटल साइड ऑफ द गेम में, कि आप कोप कितना अच्छा करते हो प्रेशर को, आप उस प्रेशर के अंदर एग्जीक्यूट कैसे करते हो अपनी स्किल्स को, वो चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। और रेड बॉल क्रिकेट, ऑल दिस प्लेयर्स से विल एक्चुअली टीच यू दैट, वो जैसा साद बेग की उन्होंने बात करी, वो आपको सिखाएगी, शॉर्ट सिलेक्शन भी सिखाएगी, सारा कुछ सिखाएगी, और आपको लॉन्ग क्रिकेट में डिसिप्लिन लेके आएगी। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो आपने बात की है, अगर अब मिसालें भरी पड़ी हैं अराउंड द वर्ल्ड, टिम डेविड एक बहुत बड़ी मिसाल है, अगर आप स्पेशलिस्ट अपने आप को शुरू से डिसाइड कर लेते हो कि भाई मैं हूं ही वाइट बॉल स्पेशलिस्ट, मैंने रेड बॉल क्रिकेट खेलनी ही नहीं है, एंड टिम डेविड इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, और आप में यूनिक सेट ऑफ स्किल्स हैं, यू कैन परस्यू दैट एज ए करियर, तो देन यू कैन डू दैट। बट ऑलवेज ये फेवर में हमेशा रेड बॉल क्रिकेट के खेलने की बात रहेगी, क्योंकि उसके फायदे इतने हैं, बहुत ज़्यादा है, बट इट कैन वर्क नाउ अदर वे अराउंड एज वेल। बैटिंग के लिए भी बॉलिंग के लिए भी। देखें अगर वाइट बॉल और रेड बॉल में क्या डिफरेंस है, अगर T20 खेले तो 1 घंटा 20 मिनट में आप इतनी क्रिकेट नहीं सीख सकते, आपने सिर्फ मारना है, हर बॉल पे ट्राई आउट करना कि हमने रन्स करने हैं। वनडे खेलते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपनी स्किल्स को, अपने आप को सेटल करने का टाइम मिल जाए। टेस्ट मैचेस या रेड बॉल में आपकी हर चीज़ का टेस्ट है, अगर आपकी फिजिकली है, आपकी टेक्निक का टेस्ट है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, तो फिर ये जो 4-5 चीज़ें मिलती हैं तो फिर आप टेस्ट मैचेस खेलते हैं। तो ये बड़ी, अब यंगस्टर जो है ना वो ज़्यादातर वाइट बॉल को फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी एग्जांपल है यंगस्टर के लिए कि रेड बॉल जो है वो हमेशा आपकी क्रिकेट को इम्प्रूव करती है, और अगर रेड बॉल पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए उनको हेल्प मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं, पाकिस्तान के भी हमारे पास एग्जांपल है, दुनिया भर के भी, जो रेड बॉल में, ख़ास तौर पे बॉलर्स में हम ये देखते हैं ट्रेंड एक चल रहा है कि लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट को थोड़ा हेजिटेट करते हैं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में वो कहते हैं कि नहीं अब हमने T20 खेलनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने 4 ओवर कराने, आपकी रिक्वायरमेंट ही और है। तो एक फास्ट बॉलर के लिए अपने करियर को इलोंगेट करना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है व्हेन यू टॉक अबाउट T20। व्हाट वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस डिबेट? That's a brilliant question because I think कुछ लोगों की बॉडी टाइप ऐसी होती है, मतलब मैं हमेशा हारिस रऊफ की मिसाल है डिबेट में ना, हमेशा हारिस रऊफ के हक में था, क्योंकि आप उनकी प्रोग्रेशन देखिए ना, एक ऐसा बॉलर जो टेप बॉल क्रिकेट से पिक होके हॉट बॉल क्रिकेट शुरू करता है, उसकी बॉडी को अर्ली एज में आदत ही नहीं है लंबे स्पेल करने की, और ख़ास तौर पे इसमें तो पहला स्पेल हो जाता है सारे फास्ट बॉलर, जब आपको सेकंड स्पेल और थर्ड स्पेल करने आना होता है ना एट द एंड ऑफ द डे, तब आपकी पता लगता है जान कि आप कितने पानी में हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पानी के नीचे हैं आप ठीक है। तो अगर एक ऐसा प्लेयर है जो इस चीज़ को समझता है कि यार ना मैंने ये वाला फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलना है, ना मेरी बॉडी यूज्ड टू उसे, बिकॉज मैं लेटर ऑन अपने करियर को डेवलप किया है टुवर्ड्स हार्ड बॉल क्रिकेट, समबडी लाइक हारिस रऊफ, आई एम कंप्लीटली इन एग्रीमेंट विद हिम टू प्ले वाइट बॉल क्रिकेट। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। क्या हर प्लेयर, लेकिन हर प्लेयर की अपनी, आपको लगता है कि मर्जी भी होनी चाहिए कि वो कौन सा फॉर्मेट प्रेफर करते हैं? अदनान, आपकी इस पे क्या टेक है? क्योंकि आजकल इतनी लीग्स भी चल रही हैं कि प्लेयर्स चाहते हैं कि वो मैक्सिमम T20 क्रिकेट भी खेलें, चाहे वो अपनी कंट्री के लिए हो या चाहे वो लीग्स में हो। देखें रेड बॉल के लिए आपको जो है ना मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको
उस तरह की तैयारी करनी पड़ती है, आपको उस तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उस तरह का कार्डियो करना पड़ता है, तो फिर जाके आप टेस्ट मैच में लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं या टेस्ट मैचेस खेल सकते हैं। अगर आपकी बॉडी यूज टू हो 4 ओवर्स के लिए, तो फिर आप तैयारी भी उस तरह की करते हैं। और देखें, दुनिया में जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, बिग बैश में शादाब चला गया खेलने के लिए, हसन चला गया खेलने के लिए, तो क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो ये डिपेंड ऑफ प्लेयर होता है कि उसकी बॉडी कितना लोड उठा सकती है। अगर वो ज़्यादा इंजरीज हो रही हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए टेस्ट मैचेस खेलना। और अगर वो यूज टू है T20 के लिए, तो उसमें इंजरी नहीं हो रही, वो उसका कैरियर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से प्लेयर के ऊपर डिपेंड भी होता है कि उसकी तैयारी किस तरह की, और क्या उसकी बॉडी वो वेट उठा रही है या उसका बर्डन उठा रही है। अगर नहीं उठाती तो फिर वो इसलिए टेस्ट मैच से थोड़ा दूर हो जाते हैं। देखिए, ये एक ना साइंस का रूल है, एक्सक्यूज मी, 10,000 आवर्स का। ये आप कोई भी गूगल करेगा तो उसको मिल जाएगा। वो 10,000 आवर्स का रूल ये है कि आप कोई भी चीज़, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर 10,000 घंटे के लिए करते हैं तो यू बिकम अ मास्टर एट दैट। आपकी मसल मेमोरी ऑटोमेटिक पे चली जाती है, सबकॉन्शियस पे आप चली जाते हो। ये इसी तरह के जब आप पहली दफ़ा गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप हर मिरर को देख रहे होते हो, गेयर, ये हर चीज़ आपको जेन में चल रही होती है। और जब आप ऑटो हो जाते हैं गाड़ी में, फिर आप 10 काम और कर रहे होते हैं और गाड़ी खुद ही चल रही होती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम यंगस्टर्स की उस फेज ऑफ लाइफ में, जब वो अंडर 19, अंडर 16 से निकल कर अब आपकी डोमेस्टिक और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में आए हैं, तो आई वुड एक्चुअली प्रेफर कि उन्हें लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट खिलाई जाए, क्योंकि दे कैन ऑलवेज चूज टू स्पेशलाइज इन वाइट बॉल क्रिकेट इन देयर अर्ली 20s। आई थिंक मेरी नज़र में तो अगर उसी एज में अगर आप उनकी वो रिपीटेबिलिटी डाल देंगे और वो बॉडी मैकेनिक्स उनके सेट हो जाएंगे अर्ली इन देयर लाइफ, अर्ली इन देयर करियर्स, it's actually easier for them to choose which format they can go for. But generally आप बात करें, इसलिए लोग रेड बॉल क्रिकेट को पुश भी करते हैं क्योंकि रिपीटेबल इतना है ना, जितने ज्यादा रेपिटेशन होगी उतने आप ऑटोमेटिक में चले जाओगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ना, दिस इज़ द कंप्यूटर। दिमाग एक कंप्यूटर है जो आपकी पूरी बॉडी को चलाता है। अब क्या होता है कि टेस्ट मैच में आपको लंबे स्पेल करने पड़ते हैं। दिमाग कह रहा है चल भाई जोर लगा, बॉडी को मैसेज देता है, बॉडी कहती है नहीं भाई तुमने इसके लिए मुझे तैयार नहीं किया। अब बॉडी कह रही है, दिमाग को कह रही है कि ये काम कर, तो सारी चीज़ों को एक पेज पे लाना पड़ता है, तो फिर लंबी क्रिकेट आप खेल सकते हैं। अगर कुछ बॉडी कुछ कह रही है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो फिर वो पैच नहीं बनता, उनकी कम्युनिकेशन आपस में मीडिया नहीं कुछ और होती। कह रही है। वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती, बिल्कुल ही तो इसमें वो जिसकी नहीं वजह कर से ना सकते प्रॉब्लम हैं। फेस होती है। अगर आप लेकिन पाकिस्तान ये मैं क्रिकेटर हैं बिल्कुल तो हसन की you have बात to से be बिल्कुल used to एग्री that as करता हूँ कि well. जितने हमारे यंगस्टर हैं, जितने आ रहे हैं, उनको चाहिए लॉन्ग क्रिकेट खेलनी। उनकी मसल मेमोरी भी अच्छी होगी, उनकी बॉडी भी इस पे यूज टू होगी, तो फिर आगे जाके उनको प्रॉब्लम नहीं होगी रेड बॉल खेलते हुए। बिल्कुल, आई थिंक दैट सेटल्स अ लॉट ऑफ द डिस्कशन के रेड बॉल इज ऑलवेज गोइंग टू बी द अल्टीमेट फॉर्मेट, और एज अ प्लेयर आपकी डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली इन दैट एज ग्रुप वेयर यू आर still developing as a cricketer, it's so important to focus and shine in that long format. एक और बड़ी ज़बरदस्त हमने डिस्कशन अभी अर्लियर हम कर रहे थे ट्रेंड्स के बारे में। हमने काफ़ी दफ़ा अपने शो में लीग्स के ऊपर बात की हुई है कि आपने भी जिक्र किया वर्कलोड का, कि बैटर्स और बॉलर्स कैसे वो वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं। ये भी एक डिस्कशन थी जो कि पुराने जनरेशन में, स्पेशली इन द 70s 80s, ये डिस्कशन नहीं होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्मेट्स ही दो थे, तो प्लेयर्स हमें हर फॉर्मेट खेलते हुए नज़र आते थे। डू यू थिंक कि वर्कलोड मैनेजमेंट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जिसको प्लेयर्स को, जो आपके प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उनको इस पे फोकस करना चाहिए और इसको प्रायोरिटाइज भी करना चाहिए? मैं तो बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि वर्कलोड मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, डाइट और मेंटल कंडीशनिंग, ये आपको, मेरी नज़र में चले, इंटरनेशनल क्रिकेट तो, डोमेस्टिक क्रिकेट तो एक बहुत ही कमाल फाउंडेशनल स्टेप है। आप इंटरनेशनल क्रिकेटर है ना, जो वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लगा ना, उससे पहले आपको ये उसको बेसिक्स बतानी चाहिए, आपको ये थ्योरी उसे देनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह इम्पैक्ट करेंगी, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स। आप कितने घंटे खेल सकते हो, आपकी बॉडी कितना ले सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन योर न्यूट्रिशन, स्लीप, योर वर्कआउट एंड योर मेंटल कंडीशनिंग। तो टाइंग दैट अप टू योर क्वेश्चन, आई थिंक ये अर्ली ऑन ही आपको क्रिकेट में पाकिस्तान में शुरू करा देनी चाहिए, और फिर प्लेयर पे भी ऑनेस्ट होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द बोर्ड इटसेल्फ, कि अगर उसे रेस्ट चाहिए तो वो कितना करे। देखें, इवेंचुअली प्लेयर भी इस चीज को समझता है, अगर वो फिट ही नहीं है ना, हाँ, अगर वो फिट ही नहीं है और वो छोटा सोच के 2 लीगों का सोच रहा है और अगले 2 साल अपने दाव पे लगा रहा है,
that's never बिल्कुल, going to help आप him. इंजरीज को देख लें, ये भी एक इतना बड़ा टॉपिक है, हमें पूरा एक और भी एपिसोड चाहिए टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। लेकिन इंजरी एक ऐसा एग्जांपल है कि प्लेयर्स को शायद वो अवेयरनेस नहीं होती है, स्पेशली इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ देयर करियर। उनको होता है कि इंजर हो गए, टीम से बाहर हो गए, तो कहीं जगह आपकी ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, एंड देन वो रीहैब को पूरा उनको क्विक करना पड़ता है, एंड बिफोर दे आर कम्प्लीटली रिकवर्ड उनका वापस टीम में आने का जो है वो हमें नज़र आता है कि उनका कमबैक हो रहा है। हमने शाहीन की भी एग्जांपल ली थी कि जब उनको इंजरी हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, कैसे उनका रीहैब थोड़ा सा इनकम्प्लीट कहीं ना कहीं रह गया, और टीम के साथ फिर रहे थे एग्जैक्टली उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक दीज सैक्रिफाइसेस। चले, मूविंग ऑन, टाइम हमारे पास कम है, हमें रॉबिन स्मिथ के ऊपर भी बात करनी है। हमने अभी अर्लियर ऑन अपने न्यूज़ 9 वाले सेगमेंट में भी शेयर किया कि फॉर्मर इंग्लैंड बैटर जो कि इनका निकनेम था जी द जज, बिकॉज कितना वो ज़बरदस्त उनका लॉन्ग करियर रहा है, करेजियस बैटिंग उन्होंने डिस्प्ले की है। 1988 से 1996 तक इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया इन 62 टेस्ट मैचेस इन 71 वनडे इंटरनेशनल्स, एंड सैडली ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 62। अदनान, कोई भी जब आपके लेजेंड यू नो व्हेन ही पासेस अवे तो उनकी लेगेसी को आप रीविजिट करते हो, और आप देखते हो बहुत सारे प्लेयर्स ने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया, लेकिन ओवर 66,000 इंटरनेशनल रन्स, ये लेगेसी, ये तो आई थिंक स्टैट्स ही आपको बता सकते हैं व्हाट अ ग्रेट बैटर ही वाज। देखें, एक और क्रिकेटर जो है वो जो एक क्रिकेट, देखें ये नहीं है कि पाकिस्तान का प्लेयर है या दुनिया, वी आर फैमिली, जितने भी क्रिकेटर हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो किसी भी कंट्री से हो, और इस तरह टेस्ट मैचेस खेलना, इतने रन्स करना और इंग्लैंड के लिए इतना परफॉर्म करना, 90s वाले प्लेयर बहुत जो कहते हैं ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, और इस तरह उनका परफॉर्म करना और इस तरह बहुत सी चीज़ें जो मेमोरीज़ है ना वो हमारे लिए छोड़ गए हैं, तो हम दुआ गो हैं कि उनके लिए जो भी जो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, Yeah, I mean, praise for him and his family, definitely. और ऐसे आपको जो personalities होती है ना, they're more discussed around as well because they've left a mark, an indelible mark on not just their country, but cricket in general. And he was one of those personalities. Especially, I think a lot of people said he was way ahead of his time क्योंकि जिस तरह की cricket वो खेलते थे और जिस तरह की ferocious nature थी उनकी, तो a big loss for cricket fraternity, absolutely. absolutely, and of course our thoughts and prayers are with Robin Smith and his family, his loved ones, his colleagues and all of his fans जो कि दुनिया भर में बहुत सारे थे जिन्होंने भी उस एरा में क्रिकेट को फॉलो किया। ऑफ कोर्स दे नो ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, और इस तरह हमने भी अभी मेंशन किया कि ओवर 66,000 इंटरनेशनल रन्स, दैट्स अ रिच करियर। सो हम अपने प्रोग्राम के अब टुवर्ड्स दी एंड हैं। हमने आज रेड बॉल के ऊपर भी बात की है, डोमेस्टिक के ऊपर भी बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर स्पेशली जो नेशनल टीम है उसके ऊपर आज बात नहीं हो सकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा PSL के हवाले से भी हम क्विकली बात करना चाहेंगे कि इस वक्त हम उन स्टेजेस में हैं। हसन, आप खुद भी PSL में बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हैं विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। व्हाट कैन यू टेल अस राइट नाउ अबाउट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट as far as the two new teams are concerned? अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई हमें, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद सियालकोट विल बी वन ऑफ द टू टीम्स। आप हम सो फार क्या शेयर कर सकते हैं ऑन दिस डेवलपमेंट? I think I can share as much that you'll most likely see a फैसलाबाद name team. ठीक है, वो टीम आने वाली है। और सेकेंडली देर आर इंटरेस्टेड पार्टीज, उसमें आपने ऑक्शन की डेट तो देख ली होगी, तो काफ़ी चीज़ें जब वो टीम सेटल हो जाएंगी, वो नाम सेटल हो जाएंगे, ओनर सेटल हो जाएंगे, फिर डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से होंगी जिसमें आपको ये पता लगेगा कि हर टीम की रिटेंशंस कितनी हैं, जो नई टीम्स आई हैं उनकी, क्योंकि अब हर टीम तो ऑलरेडी कुछ कैरी करके ड्राफ्ट में बैठेगी, तो ये किस तरह ड्राफ्ट में बैठेंगे, क्या इन्हें ओपन पिक्स पहले मिल जाएंगी कि 3 प्लेयर वो भी उठा लें, अगर लेट से 3 की रिटेंशन है वो भी हमें देखने को मिलेगा। फिर ड्राफ्ट कैसा होगा, किस तर्ज का होगा, क्या पुराने तर्ज पे हो गए हैं, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो भी आपको एकदम देखने को मिले। तो जिस तरह ये जनवरी और लेट दिसंबर का पीरियड शुरू होता है, डेवलपमेंट्स गोना बी वेरी क्विक। अच्छा, किसी ने इंटरनेट पे हमारे उस पे फेसबुक पे भी ये सवाल भेजा था कि क्या सियालकोट स्टैलियंस वापस आएंगे क्योंकि ये नाम इतना पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए इतना नॉस्टैल्जिक है, तो अगर सियालकोट की टीम आई
तो वो तो फिर स्टैलियंस देखिए सियाल को स्टैलियन को इसलिए याद करते हैं क्योंकि T20 में बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रॉफीज़ जीती हुई हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से लेजेंड प्लेयर उसमें खेले हैं। शुएब मलिक खेले हैं, राना नवीदुल हसन खेले हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर खेले हैं जो पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया उन्होंने। तो क्या लोगों को वो मेमोरी फिर लाना चाहते हैं कि स्टैलियन वापस आए सियाल को, क्योंकि बहुत बड़ा नाम था। तो आई विश कि जो भी टीमें ऐड हों, जो भी बेस्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान लीग के लिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक राइट टाइम पे जो है वो राइट हमें सरप्राइज़ देगी। तो लेट्स सी कि उसका वेट करते हैं। बिल्कुल। मोहम्मद हमज़ा ने हमसे ये सवाल पूछा था हमारे सोशल मीडिया पे, तो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। थैंक यू मोहम्मद हमज़ा। और आप लोग भी हमसे जो है यू कैन गेट इन टच विद अस अक्रॉस आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक पे, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी। यू कैन सब्सक्राइब टू PTV स्पोर्ट्स एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड टू अस। अपने सवाल, अपने कमेंट्स ज़रूर हमारे साथ शेयर करें सो दैट वी कैन हैव योर say in the show as well. Gentlemen, as always, thank you so much for your time and analysis. और आप लोगों अब अदनान का आज वेलकम कम बैक हुआ है हमारे शो में, तो आज बड़ा ज़बरदस्त था। एक और कम बैक तो बड़ा ज़बरदस्त रहा आज का शो। And we are inching closer to our 150th episode as well. वो भी हम आपके साथ of course celebrate करेंगे on air. But thank you guys for watching another episode of Sports Tonight. अपना बहुत ख्याल रखें. Good night. अल्लाह हाफ़िज़।